The question is a company manufactures bicycles and tricycles, each of which proceeds through two machines A and B. So they are into manufacture of bicycle, two-wheeler cycle, and three-wheeler cycles of kids. And they need to proceed through two machines A and B. Machine A has a maximum availability of 120 hours and machine B has a maximum availability of 180 hours. Manufacturing a bicycle requires 6 hours on machine A and 3 hours on machine B. Manufacturing a tricycle requires 4 hours on machine A and 10 hours on machine B. So if profits are 180 for a bicycle and 220 for a tricycle, determine the number of bicycle and tricycles that should be manufactured in order to maximize the profit. So the question is that we have all the details: machine A in hours, machine B in hours, bicycles, tricycles, maximum availability. So step one is to convert this information, this theoretical information into tabular format, and then formulate the LPP, decision variable, x1 number of bicycles, x2 number of tricycles, then objective function max z is equal to 18x1 plus 220x2, and then subject to constraint 6x1 plus 4x2 less than equals to 120, because we have already an information that 120 is the maximum size and 180 is the maximum size for tricycles. So 3x1 plus 10x2 is less than equals to 180, and x1, x2 is greater than 0, that is non-negativity. So after considering all these LPP number one steps, we will go ahead with considering the non-linear equation to linear equation and make it an equal equation. So 6x1 plus 4x1 is less than equals to 120. We'll convert this into new format, that is 6x1 plus 4x2 is equal to 120. एंड ये जो भी x1 एंड x2 का वैल्यू दिख रहा है वो आपको आंसर सॉल्व करने के बाद ही आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ठीक है. सो पहले उन्होंने आंसर सॉल्व किए और आंसर सॉल्व करने के बाद उन्होंने हमें एक अच्छे से टैबुलर फॉर्मेट में दिखाया है. ये देखिए यहाँ पे x1 20 है और यहाँ पे x2 30 है. सो सेम चीज़ उन्होंने हमें यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में दिखाया है. ठीक है. ये टैबुलर फॉर्मेट आप इधर नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो आफ्टर योर इक्वेशन और सॉल्यूशन. ठीक है. यू कैन डू इन बोथ वेज. सो डिपेंड्स आपको कैसे वो ठीक लग रहा है. यस मैम, आंसर सॉल्व करने के बाद टेबल लिखा तो भी चलेगा. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. It's just a matter of representation, how you present your answers. So there is no hard and fast rule until but वो इक्वेशन का जो टेबल है उस इक्वेशन के आंसर के नीचे ही लिखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इक्वेशन 1 2 3 लिखा है एंड देन यू आर अगेन राइटिंग दी 3 टेबल्स. सो प्लीज वो ध्यान में रखिएगा. सो इक्वेशन 2 हम करेंगे. ठीक है. उसे भी हम इक्वल वैलेंट बनाएंगे एंड उसका आंसर जो है x1 x2 डिराइव करेंगे फॉर ग्राफिकल कंसिडरेशन. देन उसके बाद हम इक्वेशन बना लिया थर्ड वाला एंड देन व्हाट विल डू इज we'll point out all these equations or considerations into our graph. So जितने भी आंसर्स मिले हमें, ठीक है, ये दो जो टेबल के आंसर्स है हमारे पास वो हम ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पे लिखेंगे. सो x1 2 0 20 एंड 0. सो x1 कहाँ है, यहाँ पे 20 है एंड यहाँ पे 0 है. सो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा एंड देन x2 इज 0 एंड 30. सो x2 क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 30 है. So this 30 and 20 will join. Equation number 1 complete. Second equation में we have x1 60. So x1 के यहाँ पे लाइन में देखेंगे 60 and x1 के बाद x2 0 है तो we will put a point, will mark a point and then x2 is 0 and 18. Okay. So यहाँ पे है 0 and 18 है and इन्होंने 0 and 10 लिया है. So please keep in mind कि ये printing mistake है उनकी तरफ से. So ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बहुत सारे मिस्टेक्स आपको दिखेंगे एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे 18 लिखा और यहाँ पे 10 कैसे आया.
सो ग्राफिकल मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो ये मैक्सिमाइजेशन जो है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अगर मिनिमाइजेशन होता तो हम यहाँ पे ये बाहरी इलाका लेते, बट नाउ हियर वी हैव मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन, तो विल टेक इनटू कंसिडरेशन द इनर पार्ट जो इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कौन सा हो रहा है पार्ट? सी, वी हैव पॉइंट ए, वी हैव पॉइंट बी एंड वी हैव पॉइंट सी। सो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है और वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, और उसके अंदर हमारा जो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमें दिख रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर से हमारा ऑप्टिमाइजेशन दिखाई देगा कि कितने ऑप्टिमली हम लोग ने हमारे इंफॉर्मेशन को हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल किया। सो आफ्टर ग्राफिकल कंप्लीशन, ग्राफिक जब कंप्लीट हो जाता है, डायग्राम जब कंप्लीट हो जाता है, तो हमने एक कॉर्नर पॉइंट मेथड के थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का जो सॉल्यूशन है वो निकालना है। तो हम वर्टेक्स लेंगे, देन हम लोग z लेंगे और हम उसके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो वर्टेक्स में जीरो पहला है, जीरो जीरो, ए है टू जीरो, 20 जीरो एंड जीरो, देन बी है 10 एंड 15, अगेन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, एंड देन सी है 0 एंड 18। 10 एंड 15 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कहीं पे है क्या। सो ट्राई साइकिल इज 10। ओके, लेट्स सी। ये 10 एंड 15 देखिए हमारे पास यहाँ पे बी जो पॉइंट है वो पॉइंट से हमने डिराइव किया है। ठीक है, लेकिन ये जो बी पॉइंट है उसका 10 है, और ये जो ये जो यहाँ पे 10 है वो एक्चुअली में 18 है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो हम लोग 10 कंसिडर 15 यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एंड देन 10 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो 10 का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है वो 18 का पॉइंट है। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स और छोटी छोटी बातें हमें नोट डाउन करनी है और ध्यान से सम हमें सॉल्व करना है। देन इसके बाद हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। 0 0 0, ए 20 एंड 0, बी 10 एंड 15, सी 0 एंड 18। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया हमें। z का हमारे पास वैल्यूज है 180 इंटू x1 प्लस 220 इंटू x2। सो 180 इंटू जीरो, 220 इंटू जीरो, तो जीरो का वैल्यू जीरो आएगा, o का वैल्यू जीरो आएगा, देन a का वैल्यू है 180 इंटू 20 प्लस 220 इंटू जीरो। सो 180 इंटू 20 का आंसर 3600 यहाँ पे आ गया। देन 180 into 10 plus 220 into 15 is 5100. Then 180 into 0 plus 220 into 18 comes to 3780. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया है। अब इसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है? देखिए जी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 10 एंड 15। ठीक है, बिकॉज ये इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा। यहाँ पे जो है हम इंटरसेक्शन हो रहा है हमारा, देखिए आपके पास मार्क है, और यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमने दिखाया है। ठीक है, सो ये हमारा एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, और इस ऑप्टिमम सॉल्यूशन से हम हमारा आंसर, फाइनल आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो मैक्स जेड इज इक्वल टू 5100, दैट इज आर ऑप्टिमल प्रॉफिट। इतना हमारा एक ऑप्टिमल प्रॉफिट है। ठीक है, अगर 3780 बोलेंगे तो भी कम है, 3600 बोलेंगे तो भी कम है। हमारा जो ऑप्टिमल और फाइनल आंसर है वो है 5100। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट है ग्राफिकल मेथड्स में तो पूछ लीजिए, और एल्स आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, एंड यू नीड टू शेयर इट through WhatsApp or maybe through email. Email would be good. So, so if you have doubt, then we'll take doubts. और else what I'll do is आप बाकी के क्वेश्चंस देख लीजिए कौन से है, कैसे कैसे है, एंड देन हम लोग इसका डायरेक्टली डाउट सॉल्विंग लेंगे। बिकॉज
सॉल्यूशन सबका सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सब में ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही हमें फाइनल डिराइव करना है। ठीक है, वही सिंप्लेक्स मेथड से फिर ग्राफिकल मेथड में हमें जाना है, ग्राफिकल मेथड से हमें हमारा जो फाइनल आंसर है वो डिराइव करना है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स देन वी कैन टेक डाउट्स, और एल्स व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अप समथिंग। ठीक है, ये जो यहाँ पे स्पेशल केसेस इन लीनियर प्रोग्रामिंग है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे, जब हमें पूरा फुल फ्लेज लेक्चर मिलेगा तभी। ठीक है, टिल देन होल्ड ऑन। और इसके पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व्ड आंसर्स में 8 तक आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, और कुछ रहेगा तो यू कैन आस्क मी डाउट्स। सो अभी अगर कुछ डाउट है एग्जाम रिलेटेड या फिर कुछ भी पढ़ाई रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, रिस्पेक्टेड विथ योर ओआर सब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट टू ओआर सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। तो कोई डाउट है तो आप पूछिए, अगर नहीं है तो नो डाउट्स। एंड इंस्ट्रक्शन याद रखिएगा कि बाकी के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो आपको देखना है, पीडीएफ सबके पास है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई डाउट है तो गुड, अदरवाइज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाईज कि डाउट है तो यस सर डाउट एंड योर क्वेश्चन, एंड नहीं है तो नो डाउट सर नो क्वेश्चंस।